السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ زون کے دائرہ اختیار میں زونل کمشنر سنواس ریڈی نے اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ UCD ٹیم کے ساتھ ایک خصوصی جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران کمشنر نے خاص طور پر سیلف ہیلپ گروپس SHGs کی تشکیل پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور مزید خواتین کو ایسے گروپس کے قیام کی طرف راغب کیا جائے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 99 دنوں کے ایکشن پلان کے تحت اب تک زون میں مجموعی طور پر 195 سیلف ہیلپ گروپس قائم کیے جا چکے ہیں۔ کمشنر نے استعداد میں مزید اضافہ کرنے کے لیے وارڈ سطح پر وسیع بیداری مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمیچور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ تلنگانہ حکومت نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ریاست بھر میں ایکریڈیٹیشن نظام کو وسعت دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ، ریونیو اور ہاؤسنگ پونگولیٹی سنواس ریڈی نے کہا کہ حکومت ہر اہل صحافی کو ایکریڈیٹیشن کارڈ فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ محکمہ اطلاعات کے زیر اہتمام ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے متعدد صحافیوں میں نئے ایکریڈیٹیشن کارڈز تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے وژن کے تحت میڈیا سے وابستہ افراد کو بہتر طبی سہولیات اور دیگر فلاحی فوائد فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر نے وضاحت کی کہ نئے کارڈز کے اجرا میں تاخیر ملک بھر میں رائج بہترین طریقہ کار کا جائزہ لینے کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ سابقہ حکومت کے پاس 32,500 ایکریڈیٹیشن جاری کرنے کی گنجائش تھی، لیکن صرف 23,352 کارڈز جاری کیے گئے۔ موجودہ حکومت نے اس دائرہ کار کو بڑھا کر 46,000 سے زائد صحافیوں تک وسیع کر دیا، جن میں سے اب تک تقریباً 2,800 درخواستیں منظور کی جا چکی ہیں۔ صحافتی تنظیموں کی تجاویز کی بنیاد پر متعلقہ سرکاری احکامات میں ضروری ترامیم بھی کی گئی ہیں۔ وزیر نے واضح کیا کہ اہل صحافیوں کو ایکریڈیٹیشن دینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 1 مئی کو تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ کلکٹرز کے ذریعے ایکریڈیٹیشن کارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ صحافیوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ 10 مئی تک اپنی درخواستیں جمع کروائیں اور اس تاریخ کو آخری تاریخ مقرر کیا گیا۔ وزیر نے مزید کہا کہ جب ایکریڈیٹڈ صحافیوں کی حتمی تعداد طے ہو جائے گی تو حکومت صحت اور دیگر فلاحی سہولیات کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی صحافی اپنا ادارہ تبدیل کرتا ہے تو بھی ایکریڈیٹیشن کا عمل جاری رہے گا اور اس حوالے سے فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحافیوں کے پاس جو 30 اپریل کو ختم ہو رہے تھے، ان کی میعاد میں 15 دن کی توسیع کا بھی اعلان کیا گیا تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تقریب کے دوران وزیر نے کئی صحافیوں میں ایکریڈیٹیشن کارڈز تقسیم کیے اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین کے سنواس ریڈی، محکمہ اطلاعات کے اسپیشل کمشنر جی مکندر ریڈی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت کا یہ اقدام نہ صرف صحافیوں کے لیے سہولتوں میں اضافہ کرے گا بلکہ ریاست کو صحافتی فلاح و بہبود کے میدان میں ایک مثال بنانے کی سمت ایک اہم پیش رفت بھی ثابت ہوگا۔ کنہا شانتی ونم میں روحانیت سے بھرپور ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہارٹ فلنس کے بانی بوچیا بابو جی مہاراج کی 127ویں جینتی اور سکھ گرو تیج بہادر جی کی 350ویں شہادت کی برسی نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس روحانی تقریب میں تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا، سابق صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند، اتراکھنڈ کے گورنر اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل گرمیت سنگھ، ریاستی وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ اور ہارٹ فلنس کے عالمی رہنما کملیش ڈی پٹیل داجی نے شرکت کی۔ تقریب کا مرکزی موضوع ایک انسانیت ایک دل اور شری گرو تیج بہادر جی کی تعلیمات تھا، جس کے تحت مراقبہ، یاد الہی اور عالمی بھائی چارے کے پیغامات کو اجاگر کیا گیا۔ زندگی میں بعض ملاقاتیں محض ملاقات نہیں ہوتی بلکہ وہ دعا، احساس اور ایسی یاد بن جاتی ہے جو ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ ایسا ہی ایک جذباتی اور یادگار لمحہ اس وقت دیکھنے کو ملا جب ممبئی کے معروف ڈاکٹر اور کینسر سے نبرد آزما ڈاکٹر مشیل پاریک کی برسوں پرانی خواہش پوری ہوئی اور انہیں اپنے بچپن کے ہیرو، سابق بھارتی کپتان اور اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین سے ملاقات کا موقع ملا۔
डॉक्टर मुशील पारेख मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एनकोलॉजिस्ट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हड्डियों और मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए वक्फ कर रखी और अब तक 1800 से ज़ायद कामयाब सर्जरीज अंजाम देकर बेशुमार ख़ानदानों को उम्मीद दी। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3 साल टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में तरबियत हासिल की। बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से फेलोशिप मुकम्मल की और मुल्क के कम उम्र तरीन मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी शनाख्त कायम की। वो तिब्बी तहकीक, तदरीस खदमात और सारकोमा एजुकेशन फाउंडेशन के बानी ट्रस्टी के तौर पर भी नुमाया खदमात अंजाम दे चुके हैं। दूसरों को कैंसर से लड़ने का हौसला देने वाले डॉक्टर मुशील पारेख खुद इस बीमारी से नबर्द आज़मा हैं। इस कठिन मरहले में उनके दिल में बचपन से एक खामोश ख्वाहिश थी कि वो अपने पसंदीदा क्रिकेटर और रोल मॉडल मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करें। उनके लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन सिर्फ एक साबिक क्रिकेटर या कप्तान नहीं बल्कि वक़ार, हौसले और तहरीक की अलामत। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए डॉक्टर मुशील पारेख ने तेलंगाना एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के सदर बालाजी मनोहर के जरिए एक जज्बाती पैगाम भेजा जिसका उन्वान था, एक खसूसी मुलाकात के लिए आपकी ही मदद दरकार है, मेरी आखिरी ख्वाहिश। इस दरख्वास्त की गहराई को महसूस करते हुए बालाजी मनोहर ने फौरी तौर पर मोहम्मद मुजीब खान, जो वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनसे रब्ता किया। जैसे ही ये बात मोहम्मद अजहरुद्दीन तक पहुंची, उन्होंने इंसान दोस्ती और शफकत का मुजाहरा करते हुए फ़ौरन कहा, उन्हें दोपहर 2 बजे बुलाइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ये अल्फाज डॉक्टर मुशील पारेख के लिए उम्मीद और तसल्ली का पैगाम साबित हुए। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज खमिया नायक ने हुक्म दिया है कि वनपट्टी में अमृत स्कीम के हिस्से के तौर पर शुरू किए गए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए दस्तयाब कराया जाए। एडिशनल कलेक्टर ने म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों के साथ अमृत स्कीम के हिस्से के तौर पर वनपट्टी म्यूनसिपालिटी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और नारसंग्यापल्ली इलाकों में ज़ेर तामीर ओवरहेड टैंकों का मुआयना किया। उन्होंने हुक्म दिया कि कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आवाम तक पहुँचाया जाए। इस तरह उन्होंने वनपट्टी कस्बे में नर्सरी का मुआयना किया और अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि मौसम गर्मा में पौधों को खुश्क होने से बचाने के लिए खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर पौधों की देखभाल में कोताही की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू विनोद कुमार ने हर शहरी से अपील की है कि वो अपने हुकूक के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी जाने और समाज की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। एडिशनल कलेक्टर जिन्होंने पद्मा मंडी मंडल का दौरा किया, जगतपल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर में मुनक्किदा शहरी हुकूक के दिन के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने आवाम को शहरी हुकूक की अहमियत से आगाह करते हुए अहम तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि हर शहरी को अपने हुकूक के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी जानना चाहिए और मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। बादजा उन्होंने मनीगेला, चन्ना मंडी और वेल्टूर और पेद्दा मंडी गाँव में धान की खरीदारी के मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सेंटर्स प्रधान के इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया और रजिस्ट्रों का मुआयना किया। सीवी आनंद की सानेहा उम्री। सीवी आनंद एक सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर जो 1991 बैच से ताल्लुक़ रखते हैं। अप्रैल 2026 में उन्हें रियासत तेलंगाना का नया डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम। पैदाइश 5 जून 1968, जाय पैदाइश रंगारेड्डी ज़िले तेलंगाना। स्कूल द हैदराबाद पब्लिक स्कूल, आला तालीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उनका ताल्लुक़ एक तालीम याफ्ता ख़ानदान से है और उनके वालिद सरकारी ऑफिसर थे। पुलिस कैरियर, सर्विस में शमूलियत 1991 IPS बैच। तजुर्बा तकरीबन 35 साल। अहम ओहदे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद 2 मरतबा, कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट। उन्होंने शहरी पुलिसिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कई इस्लाहात मुतारिफ करवाई, जैसे ई चालान सिस्टम, CCTV नेटवर्क की तोसी। अवार्ड्स: 2002 में पुलिस मेडल बराए बहादुरी, 2007 में पुलिस मेडल बराए मेरिटोरियस सर्विस, 2017 में सदारती पुलिस मेडल। बतौर DGP तकरूरी। अप्रैल 2026 में ओहदा संभालने की तारीख 1 मई 2026, मुद्दत तकरीबन जून 2028 तक। वो तेलंगाना के इन चंद ऑफिसरों में शामिल हैं जिन्हें वसी तजुर्बा और जदीद पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। ज़ाती ज़िंदगी। अहलिया ललिता आनंद प्रोफेसर, बच्चे 2 बेटे। बड़ा बेटा चामा मिलिंद एक क्रिकेटर जो इंडिया अंडर 19 और IPL में खेल चुके हैं।
नुमाया खसूसियात, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर, एंटी करप्शन इक़दामात में फ़ाल किरदार, शहरी सिक्योरिटी और ख़वातीन की हिफाजत के लिए इक़दामात, नज़्म व नस्क़ और इस्लाहात में महारत। CV आनंद एक तजुर्बेकार, बासलाहियत और जदीद सोच रखने वाले पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपनी तवील सर्विस के दौरान कई अहम ओहदों पर काम किया। 2026 में तेलंगाना के DGP बनने के बाद उनसे रियासत में कानून व अमन को मज़ीद मजबूत बनाने की तवक्को की जा रही। यूथ कांग्रेस की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग तेलंगाना स्टेट यूथ कांग्रेस के सदर JKD शिवचरण रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुई। उन्होंने रियासती इंचार्ज रोशन जसवाल और भाविया के साथ जिले वार प्रोग्रामों का जायजा लिया और आने वाले प्रोग्रामों के लिए हिदायत दी। इस मौके पर शिवचरण रेड्डी ने यूथ कांग्रेस के ज़ेर-ए-एहतमाम इंदिरा पार्क में मुनक्किदा महाधरना की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि यह एहतजाजी और इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा। इसी जज्बे के तहत उन्होंने मई के आखिर तक गाँव, मंडल और डिवीजन के सतह पर कमेटियों को मुकम्मल करने और यूथ कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सबको मशवरा दिया कि वो विद IYC ऐप के बारे में बेदारी बढ़ाएं और राहुल गांधी की कॉल के मुताबिक उन्होंने गिग वर्कर न्याय अभियान प्रोग्राम में फाल तौर पर हिस्सा लेने और बड़े पैमाने पर गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने को कहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत की जानिब से जो फलाही प्रोग्राम चलाए जा रहे उन्हें अवाम तक पहुँचाया जाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सेक्रेटरिएट में स्कूल, इंटरमीडिएट और आला तालीम के महकमों का जायजा लिया। IT वज़ीर तालीम नारा लोकेश और आला तालीम के अफसरान ने जायजा में शिरकत की। वज़ीर आला का मशवरा है कि AP में तालीमी शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ होनी चाहिए, कोर्सेज की पेशगोई की जानी चाहिए। CM ने हिदायत दी कि रियासत में यूनिवर्सिटियों के जरिए पेश करदा कोर्सेज की तंजीम न की जाए। CM ने तजवीज़ किया कि तहक़ीक़, इख्तरात और स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई के लिए तालीमी निज़ाम में तब्दीलियाँ लाई जाए। कांग्रेस ने अपने एक बयान में इस बात पर तशवीश जाहिर की कि हुकूमत के जरिए ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का ऐलान किए 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं कि ये अमल किस तरह पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ज़ात पर मबनी सर्वे को मुलतवी करना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी खाका सामने नहीं लाया गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि आज ही के दिन 1 साल कबल मोदी हुकूमत ने आइंदा मरदमशुमारी में ज़ात पर मबनी शुमारी को भी शामिल करने का ऐलान किया था। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वज़ीर-ए-आज़म के ड्रामाई यूटर्न की टाइमलाइन ये है कि 21 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक BJP रुकने पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला ने कहा था कि हुकूमत ने पॉलिसी के तौर पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी नहीं करने का फैसला किया। इसके बाद 21 सितंबर 2021 को मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए अदालत की कोई भी हिदायत हुकूमत की पॉलिसी, फैसला या मदाखलत के बराबर होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 16 अप्रैल 2023 को कांग्रेस सदर खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर मरदमशुमारी के साथ ही ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का मुतालबा किया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్ హైదరాబాద్ మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।